Very good afternoon to all of you. This is Abhilasha Nada from Layal Public School and I'm your social science teacher. So, students, we have already started this chapter, the revolt of 1857, right? When people rebelled 1857 and after the revolt of 1857, we have started this chapter. And in our previous class, we discussed about what people thought, about British rule, and what according to them, what Britishers were doing. Okay, so we have gone through it, and now our today's topic is a mutiny becomes a popular rebellion. Now, what is the meaning of mutiny? Mutiny means when soldiers, as a group, disobey their officers in the army. When soldiers as a group disobey their officers in the army, the sepoys or the or regiment to disobey their officers in the army, they are known as mutiny. So what is the basic difference between mutiny? Mutiny is also an open rebellion against the popular authorities, or you can say army. But you can say that, man, rebellion, revolt भी तो यही होता है. What is the basic difference between revolt and mutiny? So revolt, everyone, common citizens, peasants, landlords, zamindars, everyone everyone disobey the popular authorities. But in mutiny, specifically soldiers or a group of soldiers disobey their officers. Okay, they are known as mutiny. So now a mutiny becomes a popular rebellion. एक बहुत ही popular rebellion है 1857, the Great Revolt of 1857, or you can say First War of Indian Independence. So many names are there for this revolt. The war of 1857. Okay, so now rebellion. What is the meaning of rebellion? Rebellion meaning protest. Okay, the act of, you can say the act of armed resistance or revolt, or you can say resistance against government or a leader. That is known as rebellion. Protest बोल सकते हो आप. Okay, so how mutiny becomes a popular rebellion? How म्यूटनी जो है ये रिबेल कैसे करने लग गई थी, रिवॉल्ट उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, उनके माइंड में, उनके दिल और दिमाग में रिबेल करने की रिबेल उन्होंने क्यों किया. वी हैव गॉन थ्रू सम ऑफ द पॉइंट्स अर्लियर व्हाई लाइक they became mutiny. We already talked about it, some of the reasons. Now, through those struggles between rulers and the ruled are not unusual. Sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance, so that the power of the state breaks down. A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around. Now, अब क्या हुआ था, बहुत सारे अब रूलर्स और जितने भी लीडर्स वगैरह थे, बहुत स्ट्रगल्स तो वो नॉर्मली देख ही रहे थे, और उन्होंने ये भी देखा था कि बहुत बार जो स्ट्रगल्स होता है काफी फैल जाता है, बहुत पॉपुलर रेसिस्टेंस होते हैं, बहुत ही पॉपुलर रिवॉल्ट्स होते हैं, और जो स्टेट है उनकी पावर क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है. पर्टिकुलरली यहाँ पे किसकी बात हुई है, यहाँ पे इंडियन रूलर्स की बात हुई है कि हाउ इंडियन रूलर्स, हाउ पीपल रेसिस्ट एंड द पॉपुलर रूलर्स ब्रोक डाउन. ठीक है, उनकी बात हुई. तो बहुत सारे लोगों ने अब फिर से बिलीव करना स्टार्ट कर दिया था. स्पेशली यहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम्स की बात हुई है. मतलब वो हमेशा से हिंदू रूलर्स या इंडियन रूलर्स काफी ऐसा माना, एक वीक पॉइंट माना जाता है कि वो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी लाइक एक दूसरे को काटते थे, एक दूसरे के एनिमी थे. बट अब धीरे धीरे क्या होने लग गया था, दे बिगेन टू बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन एनिमी, एंड who is this who was that common enemy? The Britishers. So they rise up against the enemy at the same time. और इस सिचुएशन के लिए लोगों को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, कम्युनिकेट विद देम, और इनिशिएटिव, कोई स्टेप लेना, ठीक है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना.
तो ये भी बहुत important था, because obviously so many diversity was there, and so many diversities were there, and we have to organize people, they have to organize people, they had to communicate with them for any kind of this revolt, they had to communicate with them ना, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कोई तो स्टेप लेना पड़ेगा ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, सिचुएशंस को उनके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसे सिचुएशंस डेवलप होने लगी। So such a situation developed in the northern parts of the India in 1857. After 100 years of conquest means war, ठीक है, protest, conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion मतलब बहुत ही बड़ा protest, massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. Sepoys mutinied in several places, beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in rebellion. Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. Now, the revolt of 1857 that occurred in northern parts of the India was a result of the discontent and resentment of the people against British conquest. Okay, so the revolt began, especially the revolt began on 29th March. ठीक है, ऐसे तो revolt 29th March को begin हो गया था when a sepoy, Mangal Pandey was a sepoy. You all are like very much aware about this this leader और national hero मंगल पांडे, बहुत ही famous नाम है, एक sepoy थे, and he attacked his officers at बारकपुर। ठीक है, बारकपुर में उन्होंने क्या किया था, रेसिस्ट भी किया था, उन्होंने अटैक भी किया था। और अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी 100 साल से क्या कर रही थी, कॉन्क्वेस्ट कर रही थी, एडमिनिस्टर कर रही थी। अब उन्होंने एक बहुत ही बड़ा रिबेलियन जो मई में स्टार्ट हुआ था 1857 में, वो देखा। कंपनी बहुत ज्यादा क्या हो चुकी थी, डर चुकी थी उनके प्रेजेंस से। तो सिपाहीज जो थे वो भी म्यूटेड, वो भी जो है अपने ऑफिसर्स को, जो पॉपुलर ऑफिसर्स थे या पॉपुलर एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनको वो क्या करने लग गई थी, डिसोबे करने लग गई थी। पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था, बिगिन हुआ था मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये स्टार्ट हुआ, और बहुत सारे लोग अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग कास्ट से वो रिबेल करने लग गए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट में पार्ट ले लिया था। Some regard it as the biggest armed resistance, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि कॉलोनियलिज्म के खिलाफ में ये जो है सबसे बड़ा जो है बिगेस्ट आर्म्ड रेसिस्ट है, कि सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है, रिबेल है, और 19th सेंचुरी का वर्ल्ड में कहीं पे भी इतना बड़ा रेसिस्टेंस नहीं हुआ था। So now from Meerut to Delhi. Before that, just look at this picture, the battle in the cavalry lines. Cavalry lines मतलब आपके कह सकते हैं जो मिलिट्री के लिए यूज होता है, cavalry term जो है आपका। So on the evening of 3rd July 1857, over 3,000 rebels came from Bareilly, crossed the river Jamuna, यमुना के लिए कहा गया है जमुना, entered Delhi and attacked the British cavalry posts. The battle continued all through the battle continued all through the night. ठीक है, अब ये कैवलरी लाइंस, हॉर्स में जो भी सोल्जर्स हु फॉट ऑन हॉर्स बैक, ठीक है, उनको बोला जाता है कैवलरी। सोल्जर्स के लिए कहा गया है, पर जो घोड़ों में सवार सोल्जर्स होते हैं उनके लिए कहा गया है। अब 3rd जुलाई को बरेली में जो है 3,000 रिबल्स जो थे, उन्होंने 3,000 रिबल्स फ्रॉम बरेली, दे क्रॉस रिवर यमुना, एंटर्ड दिल्ली एंड दे अटैक द ब्रिटिश कैवलरी पोस्ट। और ये बैटल जो है पूरे रात भर चला था। अब देखिए, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, मेरठ उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के बिल्कुल पास में है, 1-1.5 घंटा का रास्ता पड़ता है, ज्यादा दूर नहीं है। So on 8th April 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officers in Barakpur. उन्होंने 29 मार्च को क्या किया था, अटैक किया था बारकपुर में, ठीक है, और उसके लिए उनको सजा मिली थी। कब मिली थी? 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। उनको he was hanged to death,
he was hanged to death for attacking his officers in Barakpur. So some days later, some sepoys of the regiment, I already told you about this term. Regiment means a particular unit of an army. So जो मेरठ के कुछ sepoys थे, कोई एक regiment था, एक group था, उन्होंने क्या किया था, ड्रिलिंग करने से मना कर दी थी. ड्रिलिंग मतलब ट्रेनिंग, जो राइफल आई थी, अब उसकी जो ट्रेनिंग है कि हम ये जो कार्ट्रिजेस आपने इंट्रोड्यूस किए हैं, जो ये बुलेट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, हम उसको यूज नहीं करेंगे. सो विच वर सस्पेक्टेड, उनको लगा था कि ये जो बुलेट्स हैं, ये जो कार्ट्रिजेस हैं, ये किससे ग्रीस की हुई है, किससे कोट की गई है. दे आर कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स. ऑब्वियसली काउस जो गॉड लाइक फिगर मानी जाती है इंडियंस हिंदुइज्म में, और पिग्स जो है मॉमडन्स उसे हराम मानते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, उन्होंने मॉमडन्स के लिए और हिंदूज दोनों के लिए ही ये चीज जो बहुत ही बुरी थी, उनको लगा था कि हम इन्हें यूज नहीं करेंगे. सो 85 sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. This happened on 9th May 1857. 9th May 1857 को उन्होंने एक जो कैवलरी यूनिट थी, ठीक है, एक जो ये म्यूटिनी थी, उन्होंने एक रेजिमेंट ने क्या कर दिया था, म्यूटेंट कर दिया था. उन्होंने डिसओबे किया था अपने ऑफिसर को, और उन्होंने कहा था कि हम जो है ये कार्ट्रिजेस यूज नहीं करेंगे. और उसमें 85 सेपॉयज थे जिन्होंने ये सर्विस नहीं की थी, और उनको 10 इयर्स तक क्या कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने उनके ऑफिसर की बात नहीं मानी. और ये कब हुआ था, 9 मई 1857 को हुआ. So in response of the other response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. On 10th May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoys. They attacked and killed off British officers. They captured guns and ammunition and set fire to the buildings and properties of the British and declared war on the Firangis. Firangis foreigners के लिए use किया गया है Firangis. The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country, but who would rule the land instead? The soldiers had an answer to this question: the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar. Now, अब जो मेरठ के जो दूसरे रेजिमेंट्स का उनका रिस्पॉन्स काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था. उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरठ के जेल में मार्च किया और जितने भी सेपॉयज थे उनको रिलीज कर दिया था. उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को, they shoot the British officers, they set fire to the buildings and British properties, and they declare a formal war against the British. उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक फॉर्मल वॉर क्या कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अब जब फॉरेनर्स यहाँ से निकल जाएंगे, ब्रिटिशर्स यहाँ से निकल जाएंगे, तो हमें रूल कौन करेगा, इस लैंड को रूल कौन करेगा. तो उनके पास जो आंसर था वो था कि द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर जो है वो हमें रूल करेंगे. ओके, The sepoys of Meerut rode all night of 10th May to reach Delhi in early hours next morning. As news of their arrival spread, the regiment stationed in Delhi also rose up in rebellion. Again, British officers were killed. Arms and ammunition seized. एम्यूनिशन क्या होता है, सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ बुलेट्स एंड शेल्स, जो कितनी सप्लाई है, क्वांटिटी ऑफ बुलेट्स को हम क्या बोलते हैं, एम्यूनिशन बोलते हैं. तो बिल्डिंग सेट्स ऑन फायर, triumphant soldiers gathered around the walls of the Red Fort where the Badshah lived, demanding to meet him. The emperor was not quite willingly to challenge the mighty British power, but the soldier persisted. They forced their way into the palace and proclaimed Bahadur Shah Zafar as their leader. Now, sepoys जो थे उन्होंने पूरी रात भर जो है ट्रैवल किया और उन्होंने वो दिल्ली में पहुंचे. सुबह सुबह दिल्ली में पहुंचे और जैसे ही उनके अराइवल की खबर पहुंची, उनके अराइवल की खबर स्प्रेड होने लगी, तो जितने भी रेजिमेंट्स थे दिल्ली में उन्होंने भी क्या कर दिया था, रिबेल कर दिया था. किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट में. ब्रिटिश ऑफिसर्स के जितने भी जो बुलेट्स वगैरह थी, जो भी उनके पास शेल्स वगैरह थे, एम्यूनिशन को बोला जाता है, बुलेट्स वगैरह, उनको जितनी भी क्वांटिटी में थी उनको सीज कर लिया, उन्होंने कैप्चर कर लिया, उन्होंने उनकी बिल्डिंग्स में आग लगा दी थी. अब
जो सोल्जर्स थे बहुत ज्यादा क्या थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे, एंगर में थे, और उन्होंने क्या किया था, वो मतलब आवाज लगा रहे थे और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे रेड फोर्ट के बाहर बादशाह को कि आप हमसे मिले। और एम्परर जो था, ही वाज नॉट क्वाइट विलिंग टू चेंज द माइटी ब्रिटिश पावर, को चेंज नहीं करना चाहता था, बट जो सोल्जर्स ने उनको परसिस्ट किया, रिक्वेस्ट किया, तो जो बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने दे फोर्स देयर वे इनटू द पैलेस एंड प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। उन्होंने फोर्स किया और बहादुर शाह जफर भी उनके लीडर बन चुके थे। द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। अब बूढ़े हो रहे थे वो भी, तो उनके जैसे जैसे वो बूढ़े हो रहे थे, तो उनको भी क्या कर दिया, उनको भी डर था कि मतलब कि मैं कैसे लड़ पाऊंगा, बट ही रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ्स सोल्जर्स की हेल्प से। और जब सिपॉइज को कॉन्फिडेंस देखा, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने चीफ्स को, रूलर्स को क्या किया, लेटर्स लिखे। जितने भी इंडियन स्टेट्स में मुगल रूल जो था काफी एक्सपेंडेड था, तो उन्होंने लेटर्स लिखे और उन्होंने कहा कि जो ये जो इससे पहले जो था, बिल्कुल भी लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, ट्रस्ट नहीं था कि हमारे रूलर कौन होंगे, या फिर ये सारी चीजें नहीं थी। बट जब बहादुर शाह जफर ने ये स्टेप लिया, तो इससे लोगों के माइंड, लोग काफी इन्फ्लुएंस हुए और लोगों के अंदर एक ट्रस्ट जो है, एक होप है, करेज है, वो क्या हो चुकी थी, एक बैठ गई थी। दे हैव दिस होप, दे हैव दिस करेज कि अब हम क्या है, फ्री हो सकते हैं। The Mughal dynasty had ruled over a very large part of the country. Most smaller rulers and chieftains controlled different territories on behalf of the Mughal rulers. Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. The British had not expected this to happen. They thought the disturbance caused by the issue of the cartridges would die down, but Bahadur Shah Zafar's decision to bless the rebellion changed the entire situation dramatically. Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthused. It gives them the courage, hope and confidence to act. अब मुगल डायनेस्टी भी जो है ऑब्वियसली ओवरऑल इंडिया में काफी एक्सपैंडेड था, तो बहुत सारे स्मॉलर रूलर्स, जीट्स वगैरह मुगल रूलर के बिहाफ में क्या कर रहे थे, छोटे छोटे टेरिटरीज को, रीजन्स को कंट्रोल कर रहे थे, उनको रूल कर रहे थे। अब उन्हें भी डर था, थ्रेट काफी, दे वर थ्रेटन बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, कि उनको काफी डर था कि वो क्या है, ब्रिटिश रूल जो है एक्सपेंड हो जाएगा, तो वो चाहते थे हम फिर से रूल करें। तो उन्होंने क्या किया, वो भी मुगल अथॉरिटी के अंदर रिबेल करने के लिए रेडी हो गए थे। ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो रिबेल है, ये जो प्रोटेस्ट है, इतना बड़ा हो जाएगा। और उन्होंने सोचा कि ये जो कार्ट्रिजेस का इशू है, वो धीरे धीरे जल्दी ही क्या है, वो खत्म हो जाएगा, ये जो इशू चल रहा है। बट बहादुर शाह का जो ये डिसीजन था, इससे पूरी सिचुएशन जो है ड्रामेटिकली चेंज हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने अब एक होप बना ली थी कि अब एज एन इंस्पिरेशन, काफी वो जील्ड थे, काफी इंस्पायर हो चुके थे, काफी इन्फ्लुएंस्ड हो चुके थे कि अब जो बहादुर शाह जफर जो है हमारे साथ में है, और उनको एक होप मिल गई, एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि अब हम क्या हो सकते हैं, हम फ्री हो सकते हैं। ठीक है, सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो गो थ्रू दिस टॉपिक and read this topic very carefully, and if you face any problem, do let me know. Okay, so now in our next class we will continue with this topic, the rebellion spreads. Okay, हम यहाँ से continue करते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन कौन पार्ट्स, किन्होंने पार्ट किया था, कौन कौन पार्टिसिपेट, किन्होंने, कैसे ये जो रिबेल था वो स्प्रेड हुआ धीरे धीरे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।